بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سمرقند تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ آسمان پر کوئی تارا نظر آتا تھا، نہ زمین پر کوئی چراغ۔ تمام لوگ سو چکے تھے۔ اس عالم میں صرف ایک شخص جاگ رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں یہ شخص اپنے گھر سے نکلا اور دائیں بائیں جھانکے بغیر سیدھا قصر عمارت کے پاس چلا گیا۔ اس نے محل پر ایسی قاہرانہ نگاہ ڈالی کہ اگر اس میں انگارے ہوتے تو محل خاکستر ہو جاتا۔ معاً اس نے قدم تیز کیے اور اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ شہر سے نکل کر درختوں کے ایسے جھنڈ میں داخل ہو گیا جہاں وحشی درندوں اور خوخار جانوروں کی دہشت ناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جنگل خوفناک تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ درختوں کے جھنڈ اور رات کی گھٹا ٹوپ اندھیروں کی وجہ سے آنکھوں پڑی چیزیں بھی پوری طرح دکھائی نہ دیتی تھیں، مگر یہ آدمی اس خطرناک منظر سے بے پرواہ ہو کر منزل مقصود کی طرف گامزن رہا۔ اگلا مقام اس سے بھی زیادہ خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ چلتے چلتے جب وہ اس پتھر کے پاس پہنچا جو مندر کے پہلو میں تھا تو ہیبت کی وجہ سے چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس پر اتنا خوف طاری ہوا جو عام لوگوں پر خوفناک درندے دیکھ کر بھی نہیں ہوتا۔ اس کا سبب یہ نہ تھا کہ یہ شخص کوئی بزدل انسان یا نو عمر لڑکا تھا، بلکہ اس جری اور دلیر شخص کے دل میں بچپن ہی سے مندر کی ہیبت ناک تہمات بٹھا دیے گئے تھے اور یہ انہی تہمات میں پروان چڑھا تھا۔ چنانچہ مندر کی مخفی قوتوں اور اسرار رموز سے اتنا خائف تھا کہ میدان جنگ کی سنسناتی ہوئی تلواروں کا خوف اس مقابلے میں ہیج تھی۔ چنانچہ یہ جری اور شجاع شخص پروتوں کے خوف سے قدم مقابلے میں ہیج تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس مندر میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ اس میں تو صرف وہی کاہن یعنی پروہت داخل ہو سکتا تھا جو نفس کش ریاضتیں کر کے اور زبردست قسم کی مشقتیں اٹھا کر رشی بن چکا ہو، اور جو شخص رشی بن کر اس میں داخل ہو جاتا وہ دنیا کی رونق اور اس کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا۔ چنانچہ یہ جری اور شجاع شخص پروہتوں کے خوف سے قدم آگے نہ بڑھا سکا۔ کچھ عرصے کھڑا رہنے کے بعد اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اندھیرے میں بڑے سر والی ڈراؤنی شکل دکھائی دی جس کی داڑھی وسیع و عریض اور بال لمبے لمبے تھے۔ یہ اسے دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ بھاگ کھڑا ہوتا، لیکن جب اس نے اس کا نام لے کر انسانی آواز میں اسے پکارا تو یہ سمجھ گیا کہ یہ مندر کا دربان ہے اور مجھے لینے آیا ہے۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، لیکن اس کا دل آنے والے منظر سے دھڑک رہا تھا۔ یہ آدمی ہیبت اور دہشت کی وجہ سے ارد گرد دیکھتا، نہ نظر بھر کر پروہتوں کو دیکھتا، البتہ ان کی باتیں ان کے کانوں پر پڑ رہی تھیں اور یہ انہیں ایسے سن رہا تھا جیسے خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے نظریں جھکائے ہی اندازہ لگا لیا کہ ان میں سے ایک پروہت سمرقند کا ماضی یاد کر رہا ہے اور اہل وطن کی بدعمالیوں پر آنسو بہا رہا ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ مسلمان کس طرح ناگہانی آفت کی طرح آئے اور انہوں نے سمرقند کا تاج و تخت الٹ دیا۔ اب ان کے نکلنے کی تمام امیدیں ختم ہو چکی ہیں اور سوائے ترکش دان کے آخری تیر چلانے کے کوئی چارہ نہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ اس قوم کا حکمران بڑا عادل اور منصف مزاج ہے۔ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اس کی خدمت میں اپنا قاصد بھیجیں جو اسے ہماری شکایت سے آگاہ کرے، پھر جو ہو سو ہو۔ چنانچہ یہ آدمی زیادہ سفر لے کر چل پڑا۔ دن اور رات، ہفتے اور مہینے مسلسل سفر کرتا رہا۔ سمرقند سے بخارا، بخارا سے بلخ، بلخ سے ہرات، ہرات سے قزوین، قزوین سے موصل، موصل سے حلب، حلب سے دمشق۔ سفر ختم ہونے کو آتا ہی نہ تھا۔ سب ریاستیں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، سرسبز و شاداب زمینیں، تہذیب و تمدن کے عجیب و غریب نمونے، چاروں طرف رونق ہی رونق، پرشکوہ عمارتیں، بلند و بالا محلات، وسیع و عریض شاہراہیں، حسین و جمیل انسان، باپردہ اور حیادار خواتین، مختلف رنگوں کے پہاڑ، ہزاروں باغات، مختلف اقسام کے میوہ جات۔ وہ دیکھتا چلا جا رہا تھا مگر یہ عجائبات ختم ہونے کو نہ آتے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے سمرقند کی عظمت ہیچ نظر آنے لگی۔ سمرقند کی حیثیت چین و ایران کے مقابلے میں کیا تھی جنہیں پہاڑوں کے درمیان آباد مدینۃ الرسول نے نیچا دکھا دیا تھا۔ بالآخر وہ دمشق پہنچا اور اسے پہلی نظر سے دیکھ کر یوں چونک پڑا جیسے نیند سے
से बेदार हुआ हो। बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों के बादशाहों की मुलाकात के तसव्वुर से उसका दिल धड़कने लगा। दिल में ख्याल आया कि इस हुक्मरान तक रसाई कैसे हासिल होगी। मुसाफिर हूँ, पहले कभी यहाँ आया भी नहीं, ना उम्मीदी पैदा हुई। रात गुजरने के लिए एक सराय में ठहरा। सुबह हुई तो खूबसूरत जोड़ा ज़ैब्तन किया और खलीफा की मुलाकात को निकला तो किसी आदमी से खलीफा के मुतालिक पूछते हुए टहल गया। उसे ख्याल आया कि निस्फ खिता अर्ज के हुक्मरान से मिलना। उसे याद आया कि दुनिया के बादशाह किस तरह किसरा ईरान के सामने लर्जा तरसा खड़े होते थे। वो महज उसने अपनी जान के खतरे के पेश नजर खलीफा से मुलाकात का ख्याल दिल से निकाल दिया और सोचने लगा कि जान गंवा कर मुल्क की आज़ादी मेरे किस काम की। इन्हीं सोचों और घबराहटों में इधर उधर घूमता रहा। जब कभी किसी पुरशुकूह महल के सामने से गुजरता तो रौनक और ठाट बाट देख कर उसे खलीफा का घर ख्याल करके शशदान रह जाता और मुलाकात के तसव्वुर से दिल बैठ जाता। चलते चलते उसके सामने एक वसी अरीज और आलीशान इमारत आ गई जिसका दरवाजा बुलंदोबाला और बहुत चौड़ा था। उसके दाएं बाएं लंबे लंबे मरमरे सुतून थे जिसके नक्शो निगार और बेल बूटों को देखकर आंखें खैरा हो जाती थीं। उसने देखा कि बेशुमार लोग उसमें आ जा रहे हैं और कोई रोकता टोकता नहीं। चुनांचे ये भी उसमें दाखिल हो गया। अंदर जाकर खूबसूरत वसी अरीज सहन और झील को देखकर पहले से ज्यादा हैरान हो गया। इस झील में पानी के फव्वारे फूट रहे थे और सूरज की किरणों ने उसे वो हुस्न बख्श दिया था जो बयान से बाहर है। आगे जाकर देखता है कि हजारों अफराद मुख्तलिफ कामों में मसरूफ हैं। कहीं कोई उठता है, कहीं कोई बैठता है और कहीं इल्मी हल्के कायम हैं, बहसो मुबाहिसा हो रहा है, कहीं दरसो तदरीस और कहीं फतवा लिखे जा रहे हैं। इतनी मखलूक जमा है कि एक सिरे पर खड़े होकर दूसरे सिरे तक नजर नहीं दौड़ाई जा सकती थी। फर्श ऐसा खुशनुमा कि शीशे की तरह चमक रहा था। दीवारों के रंग रोगन ने आंखें चौंधिया दी। छत की तरफ देखा तो चांदी की जंजीरों से लटकी हुई कंदीलों और शम्मादानों की खुशनुमाई ने सब कुछ भुला दिया। इस बुक़्क़े नूर में चलते चलते एक नमाजी के पास खड़ा हो गया। उसने सलाम फेर कर उस मुसाफिर का हाल पूछा। उसे मालूम हुआ कि खलीफा से मिलना चाहता है। नमाजी, तो क्या आप अमीरुल मोमिनीन के घर का पता पूछना चाहते हैं? समरकंदी, क्या ये अमीरुल मोमिनीन का घर नहीं? नमाजी हंसते हुए, नहीं, ये अल्लाह का घर है। क्या तूने नमाज पढ़ ली? उस बेचारे को नमाज का क्या पता था। ये तो उस दीन का पाबंद था जिसकी मारिफत सिर्फ डरावनी सूरतों वाले देवताओं ही को हासिल थी। कहाँ मंदिर का अंधेरा और कहाँ इस्लाम का नूर जमाल। ये खामोश रहा तो नमाजी ने फिर पूछा, क्या तुमने नमाज पढ़ ली? समरकंदी ने, नहीं जनाब, मैं नमाज नहीं पढ़ी और मैं जानता ही नहीं कि नमाज क्या है। नमाजी ने पूछा, तेरा दीन कौन सा है? समरकंदी ने कहा, मैं समरकंद वालों के दीन का पाबंद हूँ। नमाजी ने फिर कहा, उनका दीन क्या है? समरकंदी ने जवाब दिया, मुकद्दस मूर्तों की परस्तिश। नमाजी ने पूछा, तेरा रब कौन है? समरकंदी ने कहा, मंदिर के मरऊकुन देवता। नमाजी ने फिर पूछा, क्या जब तू बीमार होता है तो वो तुझे शिफा देता है या तू हाजत तलब करे तो पूरी करते हैं? समरकंदी, नहीं, मैं नहीं जानता। नमाजी ने कहा, आओ मैं तुम्हें खलीफा का घर बता दूं। और उस वक्त अमीरुल मोमिनीन घर का काम कर रहे थे। ये उसके पीछे पीछे चल पड़ा और उसका चेहरा इस्लाम के जमाल और कमाल से आगही की बिना पर तमतमा रहा था। ये दाखिल होने वाले दरवाजे की बजाय दूसरे दरवाजे से निकला और उस वक्त हैरान शशदर रह गया जब नमाजी लकड़ी के दरवाजे वाले तंग मकान की तरफ इशारा करके कह रहे थे, ये अमीरुल मोमिनीन का घर है। उसने नमाजी की तरफ देखा कि शायद ये मजाक कर रहा हो, लेकिन उसे संजीदा पाकर दरवाजे से आगे बढ़ गया। उसे दरवाजे के दराड़ से नजर आया कि एक बुजुर्ग गारे से दीवार लेप रहा है और एक बीबी आटा गूंद रही है। उसने दरवाजा छोड़ दिया और गुस्से से उस नमाजी को पकड़ लिया और कहा, तूने मुझसे झूठ बोला। झूठ बोलकर क्या लेना था? मैंने तुझसे खलीफा का घर पूछा था लेकिन तूने मेमार का घर बता दिया। नमाजी, कौन सा मेमार? समरकंदी, घर वाला और कौन? फिर उसे घर वाले का हुलिया बताया। नमाजी ने कहा, अफसोस तुझ पर, वही तो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज हैं कि इस वक्त अल्लाह के बाद रुए जमीन पर उससे बड़ा हुक्मरान कोई नहीं है और वो औरत अमीरुल मोमिनीन की बीवी है। वापस जा और दरवाजा खटखटाकर उन्हें अपना किस्सा सुना और खौफ ना खा। अल्लाह की कसम, ये कोई मुतकब्बिर और जालिम जाबिर हुक्मरान नहीं, ये तो मुतवाज़े और मुनकसिरुल मिजाज अमीरुल मोमिनीन हैं। उन्हें हक बात नाफिज करने में
कोई रुकावट पेश नजर नहीं आती। जब ये अल्लाह की खातिर गुस्सा में आते हैं तो हवाओं के जिकड़ और बादलों की बिजलियां उसकी कुव्वत बन जाती हैं। हाँ ऐ मुसाफिर, ये अमीरुल मोमिनीन का घर है, इसे छोटा और खाम समझकर हकीर न जान। ये ठीक है कि इसके दरवाजे रंगो रोगन से कोरे और मुसलह दरबान से खाली हैं, लेकिन ये दुनिया के तमाम घरों से मुअज़्ज़ज़ है। और जा खौफ ना खा। समरकंदी लौट पड़ा। जब दरवाजे के पास पहुंचा, खलीफा बजाते खुद घर से निकला। समरकंदी को देखकर पूछा तो उसने बताया कि मैं समरकंद से जुल्म की शिकायत लेकर आया हूँ। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन बाहर आए तो समरकंदी ने असाकरे इस्लामिया के जर्नेल कतीबा बिन मुस्लिम की शिकायत की। वो बगैर दावत इस्लाम दिए, बगैर जिजिया तलब किए और बगैर ऐलाने जंग किए समरकंद पर काबिज हो गया था। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, वल्लाह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म से रोका है, अपनों और गैरों से इंसाफ का हुक्म दिया है। फरमाया, ए गुलाम कलम और कागज लाओ। वो 2 उंगली का कागज और कलम ले आया। आपने चंद सतरें लिखी, मुहर लगा दी और फरमाया, वहाँ के गवर्नर के पास ले जाओ। गवर्नर ने रुआ खोल कर पढ़ा तो उसमें हुक्म था कि मौजूदा कोर कमांडर और काहिनों का झगड़ा निपटाने के लिए खुसूसी अदालत मुकर्रर की जाए और जज जो फैसला करे उसे नाफिज कर दिया जाए। गवर्नर ने सर इताअते खम करते हुए अदालत तश्कील दी और जमी बिन हाजिर बाजी को जज मुकर्रर कर दिया। अदालत की तश्कील की खबर सुनकर पुरोहित खुशी से तमतमा उठे, लेकिन लम्हे भर की खुशी के बाद उनके चेहरे ऐसे सियाह हो गए जैसे साफ आसमान पर काला बादल छा गया। उन्होंने यकीन कर लिया कि ये अदालत भी मुसलमानों की धोखाबाजी का नया बाब होगी। अदालत कायम हो गई। जज को देखकर पुरोहितों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। ये कैसे होगा कि ये फातिह आजम के खिलाफ और मगलूब पुरोहितों के हक में फैसला सुनाए। जज के गुलाम ने बगैर किसी लक़ब और कुन्नियत के सिपह सालार को पुकारा। वो आकर दाएं जानिब बैठ गया। फिर पुरोहितों के सरबराह को बुलाया और वो बाईं जानिब बैठ गया। मुकदमा की समाअत शुरू हो गई। खुसूसी अदालत के जज ने कमजोर और नहीफ आवाज में पुरोहितों के पुरोहित से कहा कि अपना दावा पेश करो। उसने कहा, असाकिर इस्लामिया के सिपह सालार ने बगैर दावत इस्लाम और बगैर जिजिया तलब किए और बगैर ऐलाने जंग किए धोखे से हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया है। जज ने जर्नेल से जवाब दावा तलब किया तो उसने कहा, अल्लाह आपको हक व इंसाफ पर गामजन रखे। अल्लाह ताला ने हमारे जरिए इस मुल्क को कुफ्र से निजात दी और मुसलमानों को इसका वारिस बनाया। जज ने पूछा, क्या तुमने दावत इस्लाम दी थी और उनके इनकार पर उनसे जिजिया तलब किया था और फिर ऐलाने जंग किया था? जर्नेल ने, नहीं जनाब जज, गोया तुमने इकरार कर लिया। सुनो, अल्लाह ने इस दीन की नुसरत इस वजह से की है कि ये हक व इंसाफ का दाई है, इसलिए नहीं कि हम मुल्कों पर बगैर हक के कब्जे करते फिर रहे। मेरा फैसला ये है कि मुसलमान इस मुल्क से निकल जाएं और सरहद पर जाकर इस्लामी दस्तूर के मुताबिक दावत इस्लाम पेश करें, फिर जजिया तलब करें। अगर ये उनके लिए भी नाकाबिल कबूल हो तो फिर ऐलाने जंग करें। उसके बाद अदालत बर्खास्त हो गई। एक तरफ से जज निकल गया, दूसरी तरफ से असाकिर इस्लामिया का सिपह सालार। मंदिर वाले भी सुनकर चल दिए मगर बाकी लोग खड़े के खड़े रह गए। हमारे समरकंद भाई ने बड़े पुरोहित के चेहरे की तरफ देखा तो जांच गया कि इस नाकाबिल यकीन फैसले के बाद उसके चेहरे पर नूर इस्लाम की किरणें चमकने लगी हैं और उसे इस्लाम की सरसब्ज शादाब और जलालो जमाल से मुनव्वर दुनिया नजर आ गई है। उसे अंदाजा हो गया कि उसने अपने दीन को खैर बात कहने का इरादा कर लिया है, क्योंकि किसी सईद रूह का नूर इस्लाम देखकर इस्लाम कबूल न करना ऐसा ही है जैसे बच्चे का माँ के पेट की तारीख दुनिया से निकलकर दोबारा उसी अंधेरे में वापस जाना है। चंद घंटे गुजरने के बाद फजा हुगुल की आवाज से गूंजने लगी। चारों तरफ झंडे बुलंद होने लगे और अफवाज इस्लामिया समरकंद से निकलने लगी। पुरोहितों ने हैरत से पूछा, ये क्या हो रहा है? लोगों ने बताया कि फैसला नाफिज हो गया और लश्कर जा रहे हैं। वो लश्कर हैं जो मदीना मुनव्वरा से चला तो समरकंद तक कोई ताकत उसके सामने ठहर ना सकी थी और उसने कैसर और किसरा के डिडी दिल लश्करों को कुचल दिया था। आज उसे दुबले पतले नहीफ और नज़ार और पस्त आवाज वाले बूढ़े आदमी की आवाज ने निकाल बाहर किया है। अब ये लश्कर सरहद पर जाकर दस्तूर के मुताबिक दुश्मन को दावत इस्लाम देगा, कबूल न होने की सूरत में जिजिया तलब करेगा और फिर जिजिया से इनकार की सूरत में दुश्मनाने दीन से ऐलाने जंग करेगा। तो क्या अब समरकंद लश्कर को रोक सकेगा जिसे रोम और ईरान और चीन की अफवाज न रोक सकी? और क्या मंदिर के
के पत्थर इसे सील रवां को रोक सकेंगे? हरगिज नहीं। बड़ा पुरोहित अपने साथियों से पूछने लगा, तुम्हारा क्या ख्याल है? समरकंदी भाई ने कहा, सुनो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये सुनकर मंदिर का सबसे बड़ा पुरोहित बोला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पुरोहित मंदिर के सज्जादा नशीन की शहादतुल हक देनी ही थी कि पूरा समरकंद नारे तकबीर से गूंज उठा। मुसलमान फौजें समरकंद में दाखिल हो गईं। ना कोई हाकिम रहा, ना महकूम, ना गालिब, ना मगलूब, सब के सब भाई भाई बन गए। किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत ना रही मगर तकवा की बिना पर। समरकंद उस वक्त से इस्लाम में दाखिल हुआ और इंशाअल्लाह दाखिल रहेगा।